دوستوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ شخص جس کی رائے آپ کے لیے معنی رکھتی ہے سب کے سامنے آپ کی بات کاٹ دے، ایسے جیسے آپ کی بات کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، آپ مسکرا دیں لیکن اندر آگ لگ جائے، دل چاہے فوراً جواب دیں، کہہ دیں کہ حق میں رہیں، اسے احساس دلائیں کہ آپ کمزور نہیں، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار جاتے ہیں، رک جائیں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ جو آپ کی بےزتی کرتا ہے وہ دلیل نہیں چاہتا، وہ آپ کا رد عمل چاہتا ہے، خاص طور پر تعلقات میں، چاہے دوست ہو، پارٹنر ہو یا قریبی شخص۔ جب وہ آپ کو نیچا دکھاتا ہے تو اکثر وہ آپ کی حد چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی جلدی ٹوٹتے ہیں، کتنی جلدی بھڑکتے ہیں اور کتنی جلدی اپنا کنٹرول کھوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ جذباتی ہوئے طاقت اس کے پاس چلی گئی۔ اس لیے اگلی بار جب وہ طنزی انداز میں بولے یا آپ کی بات کو ہلکا کرے، فوراً جواب نہ دیں، بس دیکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، چہرہ ساکت، سانس آہستہ، 3 سیکنڈ۔ یہ 3 سیکنڈ چھوٹے لگتے ہیں مگر یہی آپ کی اصل طاقت ہے، کیونکہ خاموشی خلا پیدا کرتی ہے اور انسان خلا برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سوچنے لگے گا کہ کیا اسے فرق نہیں پڑا، کیا میں حد سے آگے چلا گیا ہوں، یہ اتنا پرسکون کیوں ہے۔ آپ نے کچھ کہا نہیں مگر اس کے ذہن میں شور شروع ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں، تعلقات میں عزت چیخ کر نہیں ملتی، رویے سے ملتی ہے۔ ہر بات کا جواب دینا طاقت نہیں، کچھ باتوں کو خاموشی سے دیکھ لینا طاقت ہے، کیونکہ جو خود پر قابو رکھتا ہے وہی اصل کھیل سمجھتا ہے، اور جب آپ کھیل سمجھ جائیں تو آپ کو چیخنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں، پہلی حکمت عملی کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم، فوری جواب نہ دیں۔ ہاں، یہی سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ جب کوئی آپ کو چبھتا ہوا جملہ کہتا ہے، دل فوراً رد عمل مانگتا ہے، زبان خود بخود حرکت کرنا چاہتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس سے ابھی جواب نہ دیا تو آپ کمزور سمجھ لیے جائیں گے، لیکن یہی وہ جال ہے۔ فوری جواب اکثر سوچ سے نہیں آتا، احساس سے آتا ہے، اور احساس اس لمحے زخمی ہوتا ہے۔ جب آپ جذبات میں جواب دیتے ہیں تو آپ اصل مسئلے کا نہیں، اپنی زخمی انا کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے جملے جو غصے میں نکلتے ہیں وہ بعد میں بوجھ بن جاتے ہیں۔ آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ نے کیا کہا، سامنے والے کو بھی یاد رہتا ہے۔ رشتوں میں اصل نقصان ایک سخت جملہ کر دیتا ہے، اس لیے جو لوگ ذہین ہوتے ہیں وہ فوراً جواب نہیں دیتے، وہ لمحہ روک لیتے ہیں، بس چند سیکنڈ۔ یہ چند سیکنڈ آپ کے اور ایک بڑے پچھتاوے کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ ہار نہیں رہے ہوتے، آپ خود کو سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ خاموشی میں ایک پیغام ہوتا ہے، اور وہ پیغام چیخ کر نہیں دیا جاتا۔ وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے معیار سے نیچے نہیں جاؤں گا، میں ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اب یہ الفاظ بولتے نہیں مگر آپ کا انداز بول دیتا ہے۔ سوچیں، 2 لوگ ہیں، ایک فوراً بھڑک جاتا ہے، دوسرا ساکت رہتا ہے، بس دیکھتا ہے، سانس سیدھی رکھتا ہے۔ کسے زیادہ مضبوط سمجھا جائے گا، جس نے شور کیا یا جس نے خود کو قابو میں رکھا؟ خاموش رہنا دبنا نہیں ہے، یہ اپنے جذبات پر اختیار رکھنا ہے، اور تعلقات میں سب سے بڑی طاقت یہی ہے، کیونکہ جس لمحے آپ خود پر قابو کھو دیتے ہیں اس لمحے دوسرا شخص آپ کے بٹن سمجھ لیتا ہے، پھر وہ جان جاتا ہے کہ کون سا جملہ آپ کو بھڑکائے گا۔ لیکن جب آپ فوری جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنے بٹن چھپا لیتے ہیں، اور جس کے بٹن نظر نہ آئے اسے کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، کبھی کبھی سب سے مضبوط جواب ایک سوچا سمجھا سکوت ہوتا ہے۔ دوسرا قدم، نظر کا استعمال۔ یہ چھوٹا لگتا ہے مگر اثر بہت گہرا چھوڑتا ہے۔ جب کوئی آپ کی بےزتی کرے یا طنزی انداز میں بات کرے تو فوراً نظریں نہ جھکائیں، نہ نظریں چرا کر مسکرا دیں، نہ ہی چہرے پر غصہ لیں، بس 2 یا 3 سیکنڈ سیدھا دیکھیں، خاموش، پرسکون، بغیر کسی تاثر کے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں، کوئی ہنس کر بات ٹال دیتا ہے، کوئی فوراً بول پڑتا ہے، کوئی نظریں جھکا لیتا ہے، لیکن جب آپ سیدھا دیکھتے ہیں تو آپ ایک غیر لفظی پیغام دیتے ہیں، میں نے سنا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں، آنکھوں کا رابطہ بہت طاقتور ہوتا ہے، خاص طور پر تعلقات میں، کیونکہ جب آپ کسی قریبی شخص کو ساکت اور پرسکون نظروں سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہلچل شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ بےزتی کے بعد فوری رد عمل چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تڑپیں، جواب دیں، بات کو بڑھائیں۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو ان کا دماغ الجھ جاتا ہے، وہ سوچنے لگتے ہیں، کیا یہ ناراض ہے، کیا میں حد سے آگے چلا گیا، یہ اتنا خاموش کیوں ہے؟ انسان خاموش تنقید سے زیادہ گھبراتا ہے بہ نسبت اونچی آواز کے۔ جب آپ چیختے ہیں تو سامنے والا دفاع کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ خاموشی سے دیکھتے ہیں تو وہ خود کو جواز دینے لگتا ہے، وہ خود ہی وضاحت دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود ہی نرم پڑنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں طاقت پلٹ جاتی ہے۔ آپ نے کچھ کہا نہیں مگر فضا بدل گئی۔ نظر میں ایک وقار ہونا چاہیے، چیلنج نہیں، نفرت نہیں، بس استحکام، کیونکہ آپ لڑ نہیں رہے، آپ اپنا معیار دکھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس شخص کی نظر ثابت ہو، ٹھوس ہو، طاقتور ہو، اسے ہلانا آسان نہیں ہوتا۔ تعلقات میں اصل اثر الفاظ سے کم، رویے سے زیادہ پڑتا ہے، اور کبھی کبھی صرف چند سیکنڈ کی خاموش نظر وہ کام کر جاتی ہے جو لمبی بحث بھی نہیں کر سکتی۔
तीसरा कदम, मौजू बदल दें। ये सुनने में आम सा लगता है, लेकिन असल ताकत यही है, खास तौर पर उस वक्त जब माहौल रस्मी हो, दफ्तर हो, घर में बैठे हो या दोस्तों की महफिल में हो। और अगर किसी ने वही आपको नीचे दिखाने की कोशिश की तो सबसे आसान रद्द-ए-अमल क्या है? बात को पकड़ लें, बहस शुरू कर दें, उसी वक्त हिसाब बराबर करें। लेकिन यही वो लम्हा है जहाँ समझदार शख्स खेल बदल देता है। वो लड़ाई नहीं चुनता, वो फिजा को कंट्रोल करता है। आप बस एक पुरसुकून जुमला कहें, खैर छोड़ें या चलें आगे बढ़ते हैं। आवाज नॉर्मल, चेहरा मुतवाजन, कोई तंज नहीं। ये जुमले छोटे हैं लेकिन इनमें वजन है, क्योंकि आपने बहस को खुराक नहीं दी, आपने सामने वाले को स्टेज नहीं दिया, आपने खुद को जज्बाती साबित नहीं किया। सबसे अहम बात, आपने माहौल को बिखरने नहीं दिया। याद रखें, लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि किसने क्या कहा, वो ये भी देखते हैं कि किसने हालात कैसे संभाले। जब आप मौजू बदल देते हैं तो आप दरअसल ये पैगाम दे रहे होते हैं कि ये बात मेरे म्यार से नीचे है। आपने ये जुमला बोला नहीं, मगर सबने महसूस किया। और तल्लुकात में ये एहसास ज्यादा अहम होता है, क्योंकि जो शख्स हर बात पर लड़ पड़ता है उसे संजीदा नहीं लिया जाता। वो वक्ती तौर पर मजबूत लग सकता है मगर अंदर से गैर मुतवाजन दिखाई देता है। लेकिन जो शख्स तनाव के लम्हे में भी बात को आगे बढ़ा दे, लोग उसे मुस्तहकम समझते हैं और इस्तेहकाम एतमाद पैदा करता है। याद रखें, महफिल में इज्जत बहस से नहीं मिलती, कंट्रोल से मिलती है। जब आप माहौल को बिखरने नहीं देते तो आप खुद ब खुद लीडर की जगह ले लेते हैं, क्योंकि असल ताकत शोर में नहीं होती। असल ताकत यह कि आप फैसला करें कौन सी बात आगे बढ़नी है और कौन सी वही खत्म हो जानी है। चौथा कदम, वक्त का इस्तेमाल। हर बात का जवाब उसी लम्हे देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही जवाब सही वक्त पर दिया जाता है। अगर किसी ने सबके सामने आपको नीचा दिखाया तो वो लम्हा अक्सर जज्बात से भरा होता है। वहाँ अना शामिल होती है, वहाँ तमाशाई मौजूद होते हैं, और जब लोग देख रहे हो तो इंसान सच कम और अपनी इज्जत ज्यादा बचाने की कोशिश करता है। इसलिए समझदार शख्स उसी वक्त हिसाब बराबर नहीं करता, वो लम्हा जाने देता है, फिर तन्हाई का इंतखाब करता है। बाद में पुरसुकून माहौल में जहाँ शोर न हो, न तमाशाई हो, और वहाँ बस एक सादा सा जुमला कहता है, आपकी वो बात मुझे मुनासिब नहीं लगी। बस इतना, न लंबी तकरीर, न पुराने किस्से, न इल्जाम, क्योंकि मकसद लड़ाई जीतना नहीं, हद वाजे करना है। जब आप अकेले में बात करते हैं तो सामने वाला दिफाई कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो तासुर बचाने के मूड में नहीं होता, वो सुनने के मूड में आ जाता है। आपकी आवाज अगर पुरसुकून हो, लहजा नरम मगर मजबूत हो, तो बात सीधा दिल तक जाती है। याद रखें, गुस्से में कही गई बात अक्सर दीवार से टकरा जाती है, लेकिन वकार से कही गई बात अंदर उतर जाती है। और सबसे अहम बात, जब आपने पहले उस लम्हे खुद को संभाला था, जब आपने चीखा नहीं था, रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, महफिल में तमाशा नहीं बनाया था, तो अब आपकी बात का वजन बढ़ चुका है, क्योंकि उसने आपको गुस्से में नहीं देखा, उसने आपको काबू में देखा है। और जो शख्स खुद पर काबू रखता है उसकी नाराजगी को संजीदगी से लिया जाता है। तल्लुकात में असल ताकत वक्त के सही इस्तेमाल में है। हर बात फौरन कह देना पुख्तगी नहीं, कुछ बातों को थोड़ा रोक लेना और सही लम्हे पर रख देना, ये ज़हनी मजबूती की अलामत है। और यही वो तरीका है जिससे आप न सिर्फ अपनी इज्जत बचाते हैं बल्कि सामने वाले को भी बगैर नीचा दिखाए समझा देते हैं कि हद कहाँ है। अब जरा ये समझते हैं कि खामोशी आखिर इतनी ताकतवर क्यों होती है। क्योंकि इंसानी दिमाग सकूत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हम लफ्जों के आदी हैं, जवाब के आदी हैं, रद्द-ए-अमल के आदी हैं। जब कोई कुछ कहता है तो हम अगले जुमले की तवक्को करते हैं, लेकिन जब आप खामोश हो जाते हैं तो एक खला पैदा होता है। और ये खला मामूली नहीं होता, ये ज़हनी दबाव पैदा करता है। सामने वाला सोचने लगता है, अंदाजे लगाने लगता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया है? ये इतना खामोश क्यों है? क्या ये बात अपने दिल पर ले गया है? क्या अब ये मुझसे दूर हो जाएगा? आपने कोई इल्जाम नहीं लगाया, कोई बहस नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, लेकिन उसके ज़हन में मुकालमा शुरू हो चुका है। वो खुद ही सवाल कर रहा है, खुद ही जवाब ढूंढ रहा है। खामोशी दरअसल आईना है। अब कुछ नहीं कहते मगर सामने वाला खुद को देखने पर मजबूर हो जाता है। यही खामोशी की नफ्सियात है। कम लफ्ज ज्यादा असर। एक बात हमेशा याद रखें, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत अपने रवैये से ली जाती है। और इज्जत लेने का तरीका शोर मचाना नहीं होता, अपने आप पर काबू रखना होता है। जो शख्स हर बात पर आवाज ऊंची कर दे, लोग उससे वक्ती तौर पर दब तो सकते हैं मगर दिल से उसकी कदर नहीं करते। असल इज्जत उसकी होती है जो कम बोलता है, मगर जब बोलता है तो ठहराव के साथ, जो सीधा देखता है और अपने जज्बात को अपने काबू में रखता है। वकार चीखने से नहीं, इस्तेहकाम से पैदा होता है। अब एक अहम सवाल, अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करे तो क्या हर बार खामोश रहना ही समझदारी है? नहीं, खामोशी ताकत है, लेकिन हर सूरत हाल का मुस्तकिल हल नहीं। अगर कोई शख्स बार बार हद पार कर रहा है, आपकी
नरमी को कमजोरी समझ रहा है या जानबूझकर आपको नीचा दिखा रहा है तो फिर आपको हद वाज़े करनी होगी। मगर याद रखें, हद बनाना और लड़ाई करना दो अलग चीजें। अब चीख कर भी हद बना सकते हैं और पुरसकून लहजे में भी। असल असर दूसरे तरीके में होता है। बस सादा सा जुमला कहें, मुझे इस अंदाज में बात पसंद नहीं। न वजातों की लंबी फहरिस्त, न पुराने हिसाब किताब, न जज्बाती तकरीर, मुख्तसार वाज़े पुरसकून। आपने किसी को नीचा नहीं दिखाया, आपने बस अपनी जगह वाज़े कर दी। और जब लोग देख लेते हैं कि आप नरम है मगर बेहद नहीं, तो वो आम तौर पर दोबारा लाइन क्रॉस नहीं करते। वकार के साथ खींची गई लकीर अक्सर सबसे मजबूत होती है। एक और गहरी बात समझ लें, हर बेइज्जती सिर्फ बेइज्जती नहीं होती, कभी कभी वो एक इम्तिहान होती है। लोग जानबूझकर हद के करीब आते हैं, छोटा सा तंज करते हैं, हल्का सा जुमला छोड़ते हैं, क्योंकि वो आपको परख रहे होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी भड़कते हैं, आप कहाँ टूटते हैं, आप अपनी इज्जत के मामले में कितने संजीदा हैं। अगर आप हर बात पर फौरन रद्द-ए-अमल देते हैं तो आप काबिले अंदाजा हो जाएंगे। वो जान लेंगे आपको समझ जाएंगे कि कौन सा बटन दबाना है। लेकिन जिस दिन आपने हर छोटी बात पर जवाब देना छोड़ दिया, हर तंज को अहमियत देना छोड़ दी, उस दिन तस्वीर बदल जाती है। लोग सोचने लगते हैं ये पहले जैसा रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दे रहा, शायद ये अब मुख्तलिफ है। और वहीं से आपका म्यार सेट हो जाता है, क्योंकि जो शख्स हर बात पर नहीं हिलता उसे हिलाना आसान नहीं होता। और जब लोग समझ जाएं कि आप आसान नहीं, तो वो खुद ब खुद एहतियात बरतने लगते हैं। अब मैं आपके लिए एक अमली मशक बताता हूँ। अगली बार जब कोई आपकी बात काटे तो फौरन बोलने की जल्दी न करें, अपने होठ बंद रखें, सांस अंदर लें और दिल की धड़कन सुने। ये छोटा सा लम्हा आपके रद्द-ए-अमल को काबू में रखने के लिए काफी है। फिर आहिस्ता और पुरसकून अंदाज में कहें, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। ये जुमला बहुत सादा लगता है मगर इसमें वकार और एतमाद छुपा हुआ है। आपने लड़ाई नहीं की, आपने किसी से इजाजत नहीं मांगी, बस अपनी जगह वापस ली। याद रखें, बहस जीतना और इज्जत जीतना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप बहस जीत सकते हैं मगर लोगों की नजर में छोटे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद को संभाल लिया तो शायद बहस हार जाए मगर इज्जत जीत लेंगे। लंबे अरसे में यही इज्जत काम आती है। एक और नफसियाती हकीकत समझे, जो लोग दूसरों की बेइज्जती करते हैं अक्सर अंदर से गैर महफूज होते हैं। वो खुद को बड़ा दिखाने के लिए किसी और को छोटा करते हैं। जब आप उनके खेल में शामिल नहीं होते तो वो खुद बेनकाब हो जाते हैं। लोग देखते हैं कि किसने हद पार की और किसने वकार रखा। खामोश शख्स अक्सर मजबूत समझा जाता है क्योंकि उसकी ताकत बोलने से नहीं, उसके काबू और वकार से झलकती है। अब आखिर में एक सवाल, आपकी इज्जत क्या वाकई इतनी सस्ती है कि हर बात पर आप उसे चीख कर बचाएं, या आप इतने मजबूत हैं कि एक नजर, एक वफा और एक खामोशी से अपनी ताकत दिखा सकते हैं? याद रखें, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर वार का बदला लेना भी जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब ये होता है कि कोई जवाब ना देना। खामोशी कमजोरी नहीं, खामोशी कंट्रोल है। और जिसके पास कंट्रोल होता है, असल ताकत उसके पास होती है। अगली बार जब कोई आपकी बेइज्जती करे, रुक जाएं, सांस लें, देखें, खामोश रहें और अंदर ही अंदर कहें, मैं खेल समझता हूँ और इस खेल में मैं जज्बात से नहीं, अक्ल से चलूंगा। यही है खामोशी की नफसात, यही वो ताकत है जो बहस और शोर से नहीं बल्कि खुद पर काबू रखने से आती है। ये ताकत आपके रिश्तों में भी असर डालती है, चाहे दोस्तों, खानदानों या करीबी शख्स, या वो शख्स जिसको आप चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी इज्जत करे, आपको वैल्यू दे। जो शख्स खामोशी के साथ वकार दिखाता है वो न सिर्फ खुद को मजबूत बनाता है बल्कि दूसरे खुद ब खुद उसका एहतराम करने लगते हैं। याद रखें, ताकत हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती। असल ताकत यह है कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें, अपनी जगह मजबूती से कायम रहें और दूसरों को ये महसूस कराएं कि आप आसानी से हिलने वाले नहीं हैं। यही है वो हिकमत जो सबसे ज्यादा असर रखती है। यही वो हिकमत है जो आपको न सिर्फ इज्जत दिलाती है बल्कि आपके अंदर एक पुरसकून एतमाद पैदा करती है। और यही वो कुव्वत है जो बहस के शोर से नहीं बल्कि सुकून और अक्ल से जन्म लेती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।